Good morning, students. I hope all is well. Welcome in online video classes. Today we are going to learn our second chapter of book Democratic Politics, and that is Federalism. Okay, so before going to our main chapter, here are some learning outcome. Learning outcome means what are the objective of this topic, learning of this topic, learning objective of this topics. And these are federalism is a form of power sharing. Here we would make you understand federalism is a form of power sharing. In first chapter, power sharing, we have discussed in detail various type of power sharing. Among them, one type is federalism. In further slide, we would discuss it in detail. Second thing is related to our learning outcome or learning objective is what is fundamental, what is federalism. In this category or in this point, we would discuss the basic of federalism. What are the characteristics, major points that is related to federalism, and how we can identify a system of governance is federal or unitary, between difference between both of them. And third is theory and practice of federalism in India. Okay, in here in this slide, power sharing example of Belgium. uh, as you know, in our first chapter, we have discussed broadly about the power sharing example in Belgium and how they can accommodate or could accommodate their ethnic diversity. What is ethnic diversity? Ethnic diversity, here is a map given. I'm zoom in that you look it properly. There are two colors in map, mainly three color, but very visible two color. एक जो येलो में दिख रहा है वो है आपका डच कम्युनिटी, और एक जो आपको रेड में दिख रहा है वो है वहाँ की फ्रेंच कम्युनिटी। यानी न्यूमेरिक मेजॉरिटी तो डच की थी, दैट वी हैव डिस्कस 59% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलोंग टू डच कम्युनिटी, एंड only 49% or only 40% belong to this French community. Then how they manage this diversity? Manage through power sharing. In 1993, Belgium adopted federal system of government. Okay, and adopting federal system is also an example of power sharing. Okay. नेक्स्ट स्लाइड हियर आल्सो अ मैप गिवन, एक मैप दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि सम कंट्रीज आर पेंटेड इन रेड कलर एंड सम आर इन वाइट आर आर सिल्वर कलर. What this shows, before going to the very definition of federalism, first we look the prevalence of federalism in world. किस तरह से एक व्यवस्था के रूप में या शासन की व्यवस्था के रूप में फेडरलिज्म, या जिसको हम जैसे भारत में यूनियन भी कहते हैं, कई जगह इसे संघवाद भी हिंदी में कहा जाता है, तो फेडरलिज्म का कैसे प्रेवलेंस बढ़ा है, ये 2002 का मैप है. इसमें कुछ और कंट्रीज़ ऐड हो गई हैं, जैसे एक नेपाल ऐड हुआ है, इसके अलावा अफ्रीका में कुछ कंट्री ऐड हुई हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में भी कुछ कंट्री ऐड हुई हैं, जिसका मैप मैं आगे आपको फिर शेयर करूंगा. लेकिन यहाँ आप ये देखिए कि फेडरलिज्म अब भी एक 40% कंट्री, जो नंबर ऑफ कंट्री है 193, उसमें 40% कंट्री ही अभी भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के रूप में फेडरलिज्म को फॉलो करती है. तो ये दिखा रहा है कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि लगभग 80% देश डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि केवल 40% स्टेट्स जो हैं या नेशंस जो हैं वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं. तो ये दिखा रहा है कि अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्या फेडरलिज्म जो होता है वो केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है या अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है, या सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेडरलिज्म होते हैं या नहीं है. ये हम चैप्टर में आगे और डिस्कस करेंगे. अभी तो ये मैप आपको बेसिकली शो करने का एक ही यहाँ उद्देश्य है. द मेन पर्पज इज टू शो यू दैट
how many country follow federalism as a system of government. Okay, here are two here are a diagram in which in this diagram you look you can see that there are two type of government mentioned, two type of government. these are नेशनल गवर्नमेंट, जहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल बॉल बना है, नेशनल गवर्नमेंट वहाँ लिखा है। दूसरे जगह पे कई सारे 5-6 बॉल्स हैं, यहाँ पे लिखा है आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे देखिए एक बॉल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसी तरह से एक सिंगल बॉल यहाँ है। तो ये दिखा रहा है दैट इज दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फेडरलिज्म। ये क्या दिखा रहा है आपका कि फेडरलिज्म में जो बेसिक बात है वो ये है कि पहले तो दो प्रकार की सरकारें होंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ देखिए आप, जैसे प्रधानमंत्री केवल एक आप सुनते हैं कि हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, देन यू सेड श्री नरेंद्र मोदी। एंड when you are asked who is the CM of nation, nobody is CM of nation. CM represent only states, and these are that states who enjoy that power which is shared among national government and state government. तो इस जो स्टेट होते हैं वो कई राज्य में अलग अलग होते हैं। आप पीएम तो एक सुनते हैं लेकिन सीएम कई राज्यों के होते हैं। तो वही राज्य हैं जो इस शक्ति के विभाजन में या शक्ति के विभाजन में साझेदारी करते हैं या पावर शेयरिंग में साझेदारी करते हैं। और ये फेडरलिज्म का एक बेसिक है। तो आप देखेंगे दो प्रकार की पहले तो सरकारें। दूसरा चीज़ आप देखेंगे इस डायग्राम में कि दोनों सरकारें जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। एंड ये बैलेंस क्या शो करता है? व्हाट दिस बैलेंस शोज? दिस बैलेंस शोज हाउ द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। लेकिन ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक थियोरेटिकल बात है, मतलब ये एक ऐसी बात है जो सिद्धांततः सही है। हम आगे और जब अपने टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, पॉलिटिकल साइंस में हम साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो उसमें ये किसी भी घटना का, राजनीतिक घटना का एक वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन होता है, साइंटिफिक अप्रोच से। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि कहीं मिसमैच हो उस थियरी एंड प्रैक्टिस में, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है और वो एक्सप्लेनेशन भी साइंटिफिक होता है। ठीक, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का ये साइंटिफिक अप्रोच है स्टडी करने का। ओके, तो आप देखेंगे पहली चीज़ कि दो प्रकार की सरकारें, सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण या विभाजन और उस विभाजन में एक संतुलन। अब यहीं से फेडरलिज्म की एक परिभाषा निकलती है एंड दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन और दैट वुड बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट slide. And these are the first characteristics are first major ideas of federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country. And what are these constituent unit? And the state, we in the next slide we have shown that these are the constituent unit of the country। यानी स्टेट जो है वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। यानी सीधी सी बात है, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी एक राज्य, एक केंद्र सरकार होगी, या जो वहाँ पे आपका नेशनल गवर्नमेंट लिखा था वो, एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट, यानी जो राज्य की सरकारें हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक जो फेडरेशन या संघीय सरकार होती है या संघवाद जो होता है उसमें दो स्तर पे सरकारें होती हैं। अभी तो हम पढ़े हैं केवल एक नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ें और दूसरा स्टेट्स के बारे में पढ़ें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये तीन स्तर की हो। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इससे जुड़ी कई होती है स्टेट गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद आप स्टेट में भी देखेंगे कि पंचायतों पे सरकार होती है। ठीक, पंचायत, तो ये जो पंचायत होती है इसे भी एक राज्य, एक सरकार का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ये निर्वाचित होती है। जैसे शहरों में आप देखेंगे कि कंटेनमेंट बोर्ड होता है, उसके अलावा जिला पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है। ये सब क्या हैं? ये सब भी सरकार का एक
रूप है। ठीक, तो कहीं कहीं पे 2 स्तर पे सरकारें, कहीं कहीं पे 3 स्तर, लेकिन बेसिकली 2 स्तर पे सरकारें तो ज़रूर होंगी। बोथ लेवल ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंटली। अब वहाँ यहाँ हम पढ़े थे कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक बैलेंस है, वो उसी की बात है। यानी ये स्लाइड में जो कहा जा रहा है कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से वो अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो वो स्वतंत्रता उनको कैसे है? वो स्वतंत्रता उनको तभी हो सकती है जब वो जो शक्ति उनको दी गई है उसके पीछे अगर वो शक्ति की गारंटी हो कि आपसे छीना नहीं जाएगा। अब जैसे होता है कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने शक्ति अगर केंद्र सरकार दी होती तो केंद्र सरकार छीन लेती, तो फिर वो कैसे शक्ति का वितरण हो कि वो छीनी ना जाए और वो संतुलन में बनी रहे। तो उसके लिए एक ज़रूरी होता है संविधान। ठीक, आप जब हम इंडिया का फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसा कि आगे टॉपिक में है, तब इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड में है कि की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। व्हाट आर द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म? तो द फर्स्ट फीचर इज देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जैसा मैंने बताया कि एक राज्य में एक केंद्र की सरकार या नेशनल गवर्नमेंट, एक स्टेट की सरकार होती है, या कई कई देशों में जैसे भारत में एक पंचायत स्तर पे भी सरकार होती है जो निर्वाचित होती है। ठीक, तो वो भी अपने एक फेडरल सिस्टम का पार्ट है। सेकेंड फीचर, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन विथ इट्स ओन ज्यूरिस्डिक्शन। अब ये दोनों स्तर की जो सरकारें हैं एक ही तरह के नागरिकों को गवर्न करती हैं या शासित करती हैं। गवर्न करना मतलब होता है शासित करना। विथ इट्स ओन ज्यूरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन इज अ टेक्निकल वर्ड दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। ज्यूरिस्डिक्शन मतलब होता है कि किसी का लीगल अथॉरिटी, यानी वैधानिक अधिदेश, या एक तरह से कहा जाए कि कोई कार्य करने की किसी के पास वैधानिक शक्ति जो होती है वही उसका ज्यूरिस्डिक्शन होता है। जैसे आपको मार्कशीट देने का ज्यूरिस्डिक्शन किसका है? सीबीएसई का, तो वो उसका लीगल ज्यूरिस्डिक्शन होता है। ठीक, उसी प्रकार से शासन करने का भी ज्यूरिस्डिक्शन होता है जो कि प्रोवाइडेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से या संविधान के माध्यम से। ठीक, द थर्ड फीचर इज द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। अगर वो, जैसा कि बात हुआ था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये शक्ति देती तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती तब वापस ले लेती, लेकिन यहाँ इसकी एक विशेषता ये है कि जो ज्यूरिस्डिक्शन दिया गया है शासन करने का, दोनों या तीनों स्तर पे सरकारों का, केंद्र स्तर पे सरकार का, राज्य स्तर की सरकार का, या पंचायतों के स्तर की सरकार का, उसकी संवैधानिक गारंटी होती है। यानी उसको छीना नहीं जा सकता आपसे। जो जिसको पावर मिल गया वो उसका ही रहेगा, उसमें दूसरी सरकार कहीं से भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ थियरी। ये एक थियोरेटिकल बात है पॉलिटिकल साइंस में। आप देखेंगे आगे कि ऐसा भी होता है कि इन सर्टेन सिचुएशन देयर आर इंटरवेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज़ अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो उसका भी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा भी होता है कि सिचुएशन के आधार पे, जैसे आज ही की आप पढ़िएगा एक पेंडेमिक एक्ट है वो इस समय इन्फोर्स है, तो उस पेंडेमिक एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो आदेश दे सके राज्य सरकारों को कि आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है एंड दे मस्ट बी फॉलोड। इफ़ दे नॉट फॉलोड देयर आर पेनल प्रोविज़न। तो एक दंडात्मक प्रावधान भी है कि अगर वो इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन दीज ऑल प्रोविज़न आर फॉर सर्टेन सिचुएशन और फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, नॉट फॉर द कॉमन सिचुएशन। जैसे जनरल सिचुएशन के लिए ये बातें नहीं है। तो थर्ड फीचर इज द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। द फोर्थ इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन गवर्नमेंट। किसी एक सरकार द्वारा जो ये फंडामेंटल प्रोविज़न है उसको एक तरफा रूप से चेंज नहीं किया जा सकता। नो गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर ओन पावर गेन। इन इंडिया जैसे कई संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो सरकार खुद कर लेती है, केंद्र सरकार, लेकिन यहाँ आप देखेंगे इसमें एक टर्म लिखा होगा द फंडामेंटल प्रोविजंस।
फंडामेंटल प्रोविज़न दैट इज़ रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ फेडरेशन, यानी वो प्रावधान जो संविधान में संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम के मूलभूत तत्वों से जुड़े हैं, उनको कोई सरकार एक तरफा रूप से चेंज नहीं कर पाएगी। तो वो कैसे नहीं चेंज कर पाएगी? जैसे कि एग्जांपल है, आप पढ़िएगा जाके आज गूगल करके कि जीएसटी बिल तभी लागू हो पाया जब उसको आधे से अधिक राज्यों ने सहमति दी अपने अपने विधानसभा के द्वारा। यानी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया और वो लागू हो गया, नहीं, उसको आधे राज्य की सरकारें यानी 29 राज्यों में से 15 राज्य की सरकारों ने सहमति दी, तब जाके वो लागू हुआ। ठीक। द फिफ्थ इज द हाइएस्ट कोर्ट एंड हियर इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज। जहाँ कहीं भी कुछ वितरण होता है, जहाँ कहीं भी कुछ विभाजन होता है, चाहे वो शक्तियों का विभाजन हो, चाहे सीमाओं का विभाजन हो, चाहे किसी के घर का विभाजन हो, तो वहाँ डिस्प्यूट एक सामान्य बात है कि मतभेद होना ही है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये इसको इसी तरह से समझा जाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो एक एम्पायर होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों झगड़ते रहे तो मामला हल कौन करेगा? हल करने के लिए एक एम्पायर चाहिए। वो एम्पायर कौन है? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह से यूएस में इसको फेडरल कोर्ट कहा जाता है। तो इसी प्रकार से एक हाईएस्ट कोर्ट होता है जो ये डिसाइड करता है कि जो डिस्प्यूट है उसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, एंड दिस डिस्प्यूट हाउ कुड बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार कैसे इसको हल किया जा सकता है। एंड हियर आर टू मोर फीचर। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड। कोई सरकार तो केवल लॉ के प्रोविज़न से चलती नहीं है, सरकार चलने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चलने, जैसे सरकार के एम्प्लॉय होते हैं उनको वेतन देना होता है। सरकार बहुत सारे वेलफेयर काम करती है, जैसे बच्चों को टीका लगवाना, बच्चों को स्कूल भेजना, वृद्धों को पेंशन देना, सबको स्वास्थ्य देना, सबको भोजन देना। तो ये कैसे होगा काम? ये होगा पैसे से। लेकिन अगर मान लीजिए दो स्तर पे सरकारें हैं और एक के पास अधिक पैसा आ जाए, एक के पास आए ही ना, तब तो वो अपने आप शक्तिहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों की शक्तियों में बैलेंस बनाने के लिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी जो राजस्व के संसाधन हैं या राजस्व के जो स्रोत हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, कि दोनों प्रकार की सरकारों के पास जो है पैसे वो इतनी मात्रा में आए कि उनके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कोई इम्पेडिमेंट्स ना हो या कोई हर्डल ना हो, कोई बाधा ना हो। एंड द लास्ट फीचर इज द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। इसके दो उद्देश्य हैं या दोहरा उद्देश्य हैं। एंड व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट आर दीज टू ऑब्जेक्टिव और डुअल ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। कैसे कि एक देश के यूनिटी यानी एकता और को सुरक्षित करना और उसको प्रमोट करना, यानी उसको आगे बढ़ाना। आप इसके पहले जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा। अभी हम बेल्जियम के बारे में मेंशन भी किए हैं कि बेल्जियम में आपने देखा कि कैसे वहाँ पे सरकार ने थ्रू पावर शेयरिंग एकोमोडेट देयर एथनिक डाइवर्सिटी एंड मूव ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। जबकि वहीं श्रीलंका की सरकार में देखा गया कि उसने न्यूमेरिक मेजॉरिटी को प्रमोट किया और उसके बाद वहाँ पे एंड कैसे हुआ? सिविल वॉर के माध्यम से। ठीक, तो फेडरल सिस्टम का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वहाँ के यूनिटी को यानी एकता को संरक्षित करना और बढ़ावा देना। और दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी क्या है? जैसे भाषा आधारित विविधता हो गई, क्षेत्र आधारित विविधता हो गई, धर्म आधारित विविधता हो गई, लोगों का जो पहनावा ओढ़ावा खान पान है, इस तरह की जो विविधता है उसको भी संरक्षित प्रदान करना, तभी एकता स्थापित हो पाएगी। और ये दोनों फेडरल सिस्टम का एम होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर को। थैंक यू।